Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and we will be revising the complete chapter concept along with MCQs. Topic for this lecture is states of matter, and in this chapter we will be taking up the kinetic molecular theory of gases in this video, right? So let's start our session. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for upcoming videos. It will help you to have a better revision, to have a thorough revision, right? So in the previous lecture from the same chapter, we have taken up few laws like Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, ideal gas equation, even Dalton's law of partial pressure and Graham's law of diffusion. These laws were taken up and various results obtained from the laws were empirical relationships. I mean to say they were based on experiment. No theoretical background was there. So the theory was proposed by Maxwell and Boltzmann, called as kinetic molecular theory. This theory provides the microscopic model of gas, how gas looks like. Gas is made up of molecules and what are the directions in which molecules are moving, with what velocity they are moving, what about their kinetic energy. So all these points were discussed in this model. Apart from that, we will be taking up various kinds of velocities the molecules are possessing. I mean to say the most probable velocity, then average velocity, then root mean square velocity, what are the various expressions for these different types of velocities, and after that Maxwell-Boltzmann distribution curve for molecular velocities. So all these concepts are to be taken, and even beyond that we will be having few questions which are based on the laws, like ideal gas expression PV is equal to nRT. So we have relations which were discussed in the laws in the previous lecture, or based on those laws we will be having few questions which will be taken up in this video, right? So let's start. The first slide, kinetic molecular theory of gases. So as you have to learn that scientist was Maxwell and Boltzmann. Name of the scientist is important. Maxwell and Boltzmann, they have worked on the molecular model of the gas and proposed this theory, and the various postulates of the theory are: first is every gas consists of extremely large number of very small particles called molecules. तो पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल से बनी है. सेकेंड, total volume of all molecules of the gas is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द टोटल गैस. जैसे कि अगर हम ये बिग साइज का कंटेनर एज्यूम करते हैं, in this container some molecules of gas are there and lot of empty space is there. You know, in a gas sample the molecules are held together with very weak intermolecular forces. Let's say these are the molecules. So volume occupied by molecules is very less as compared to the total volume of the कंटेनर. गैस तो ऑल अराउंड स्प्रेड हो जाती है, पूरे कंटेनर में गैस है, तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा होती है. नेक्स्ट, थर्ड पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस फॉलो जिग-जैग रैंडम स्ट्रेट लाइन पाथ. तो गैस का जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, बट कोलिजन्स होती हैं. कोलिजन्स की वजह से, जैसे कि ये मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे कोलाइड किया, जिस पे टिक किया है मैंने, इस पे आके फर्स्ट मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. चेंज हो जाएगी तो उसका डायरेक्शन मूवमेंट अल्टीमेटली जिग-जैग मोशन बन जाता है. तो इस तरीके से ये जिग-जैग मैनर में मूव करते हैं. कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन का क्या मीनिंग है कि जब मॉलिक्यूल जाके दूसरे से कोलाइड करता है, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी. इलास्टिक कोलिजन में एक मॉलिक्यूल का एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, राइट? There is practically no force of attraction or repulsion between the molecules of the gas. Very very important postulate. तो ये जो postulates में define कर दिया गया कि मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे. एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो. वी कैन मेंशन दिस. intermolecular forces in a gas sample
R0. Next you have the average kinetic energy of molecules of a gas is directly proportional to the temperature. Kinetic energy जो होती है molecules की, it is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे कंटेनर का, गैस सैंपल का, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी लेस. तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. और आपको याद रखना है मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट. तो ये वेरियस पोस्टुलेट्स के बेसिस पे फिर आगे फर्दर हम काम करेंगे, जिसमें कि वेलोसिटीज डिफाइन करेंगे. वेलोसिटीज में आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज सेड दैट temperature and kinetic energy. So from the postulates of kinetic molecular theory of gases, it is possible to derive a mathematical expression which is called as kinetic gas equation. Very very important. Kinetic gas equation हमें याद रखनी है. PV is equal to 1/3 mnu square, where m is the mass of the molecule. It is written here mass of one molecule, and n is the number of molecules. एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. u यहाँ पे क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. बार बार पूछा जाता है कि जो कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सप्रेशन है उसमें u आता है, वो u कौन सा वेलोसिटी है. वी कैन मेंशन हियर दिस इज द urms, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये. आफ्टर दैट इट इज सेड दैट pv इज इक्वल टू 1/3 mnu square. इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो ये इक्वेशन में हाफ एम एन यू स्क्वायर आ जाएगा. दिस पैरामीटर हाफ एम एन यू स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा हाफ एम एन यू स्क्वायर. गैस सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो, तो ये बन जाता है पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी. एंड फर्दर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर 1 मोल लेते हैं तो एन को आप 1 लिख सकते हो. एज अ रिजल्ट हमारा एक्सप्रेशन बनता है, पीवी की जगह हमने आरटी पुट कर दिया और 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी था. हेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 3/2 आरटी. दिस इज फॉर 1 मोल. अभी अभी हमने देखा भी था पीछे वाले स्लाइड में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिखा था. तो ये आपको एक्सप्रेशन यूज करना है व्हेनेवर काइनेटिक एनर्जी इज टू बी कैलकुलेटेड. बट सपोज 1 मोल तो हर बारी नहीं दिया जाता. काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, कभी क्वेश्चन 2 मोल पे आता है, कभी 10 मोल्स पे आता है. तो n मोल्स के लिए हम लिखेंगे 3/2 nRT, राइट. एंड वन थिंग मोर, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी कभी कभी कैलकुलेट करने को कहते हैं. पर मॉलिक्यूल है तो आप इसको फिर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे. एवोगैड्रो नंबर इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सैंपल. 1 मोल का जो वैल्यू था मैंने उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया. दिस वाज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल. नाउ आई एम गेटिंग पर मॉलिक्यूल. दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल. तो 3/2 kT. कीप इन माइंड ये जो R है गैस कांस्टेंट, if it is divided by Avogadro number, this is going to become another new constant called as Boltzmann constant. This is Boltzmann's constant and its value is 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin per molecule. जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस रिलेशन. तो आपको कभी मोल के लिए बोलते हैं, कभी मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं. जैसे कि समझ लो हमें ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो 32 ग्राम मीथेन के अंदर मोल्स कितने हुए, गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब 2 मोल है. 2 मोल मीथेन इज गिवन. देन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लगेगा nRT. इट विल बी 2 इंटू R इज 8.314. आपका आंसर जूल्स में आएगा अगर हम R का ऐसा यूनिट लेंगे. टेम्परेचर इज गिवन टू अस 27 का मतलब 300 केल्विन. केल्विन स्केल पे करना है. एंड 3/2 nRT. 3/2 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है लेफ्ट पे. इट इज 3/2
इंटू 2 इंटू आर वैल्यू इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 7482.6 जूल्स। इन दिस मैनर आप कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी फॉर द गिवन सैंपल। नंबर ऑफ मोल्स को चेक करना पड़ता है, कभी कभी पर मोल पूछा जाता है तो N1 लेंगे, बट यहाँ तो 32 ग्राम मिथेन दिया था। 32 ग्राम मिथेन का मतलब है 2 मोल मिथेन, राइट। इन दिस मैनर अगर पर मॉलिक्यूल आए तो फिर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होगा, पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT लगेगा। Is it clear? Moving to the next slide now. Next is Maxwell-Boltzmann distribution curve. In this curve, what is written? First of all, at a specific temperature, though the speeds of molecules are changing, the distribution remains same. Do you agree that molecules are moving all the time? Molecules of the gas sample are all the time moving. Some molecules get speeded up after collisions. Some molecules get speeded up and some molecules will get slowed down, but the overall distribution does not change. Overall distribution remains the same. Distribution of velocities remains the same. This was shown by Maxwell and Boltzmann. And speed of the maximum fraction of molecules is called as most probable speed. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अचीव करते हैं वेलोसिटी को, उसका नाम रख दिया गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब कि जैसे किसी सैंपल में कोई एक वेलोसिटी है, समझ लेते हैं ये सिंबल जो अल्फा दिया, लेट से दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, लेट से, राइट। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज पोजेस्ड बाय some 70 molecules out of 80, then we can call it that maximum number of molecules are having this velocity. तो y axis पे क्या प्लॉट किया जा रहा है? y axis पे है fraction of molecules delta n upon n. टोटल n है, उस टोटल में से समझ लो टोटल 100 है, 100 में से ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। तो y एक्सिस पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यू हैव वेलोसिटीज ऑन द x एक्सिस, right? So fraction does not change for a particular sample at a particular temperature. Sample of gas, कोई भी गैस हम ले सकते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ में ये सिचुएशन है कि डेल्टा n अपॉन n यहाँ और वेलोसिटीज हैं इस एक्सिस के ऊपर, इस तरीके का कर्व मिलता है। फ्रॉम द बिगनिंग ये लोअर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज हैं, जैसे कि आपको समझाने के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, देन 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो लो वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज आर पोजेस्ड बाय वेरी लेस मॉलिक्यूल्स। ये देखो, ये अगर टोटल 100 है तो 100 में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जिनकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे हम नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, इट इज पोजेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अचीविंग दैट वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका नाम है अल्फा, एंड अल्फा इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम मतलब 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स का यही वाला वेलोसिटी है जो कि अल्फा है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने जब अल्फा अचीव कर लिया, फर्दर जो हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज हैं, ये देखो ये बहुत हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज है। यहाँ स्टार्ट किया था 1 से, लेट से कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। सो हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज आर आल्सो पोजेस्ड बाय फ्यू मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स तो इसको ही अचीव करते हैं जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो ग्राफ शुड बी क्लियर नाउ, एंड फर्दर इट इज सेड दैट यू आर गिवन दिस न्यू बार एंड म्यू, दो वेलोसिटीज और भी दी है। ये है न्यू बार, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। एक और दी है आरएमएस, URMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। तो इनकी पोजीशन आप ग्राफ के ऊपर देख लो, अल्फा के राइट पे जा रही हैं दोनों, मतलब कि अल्फा की वैल्यू सबसे कम होगी, एवरेज की ज्यादा, और मोस्ट RMS है जो रूट मीन स्क्वायर उसकी और भी ज्यादा। तो इनका कंपैरिजन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी इस स्लाइड में ये दिखाया गया है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑब्वियसली आप देख रहे हो हाई टेम्परेचर है T2, ग्राफ में दिख रहा है T2 इज बिगर देन T1, तो कर्व पूरा का पूरा राइट को शिफ्ट हो जाता है।
With rise in temperature, can we see that velocities are increasing? At high temperature, kinetic energy is more, velocity will also be more. मोर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल का है अंडर रूट टी पे डिपेंड करता है. सो हायर इज द वेलोसिटी, मोर विल बी द स्प्रेडिंग ऑफ द कर्व. जो कर्व है वो इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है, पूरा कर्व राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाता है एंड द कर्व बिकम्स ब्रॉडर ऑल्सो. कर्व बिकम्स ब्रॉडर एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर हाई करने पे यहां ये दिख रहा है कि पूरा कर्व राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो रहा है. तो वेलोसिटीज बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटीज बढ़ती हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फिर वैल्यू भी बढ़ जाता है. वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस, कैन यू सी, बट इट इज रिटन दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल डिक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कर्व क्योंकि राइट को जा रहा है तो कम मॉलिक्यूल उसको अचीव करते हैं. आप ग्राफ में देख सकते हो ये पीक है अब हाई टेम्परेचर T2 पे, जबकि T1 पे पीक यहां आ रही थी. सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू अगर समझ लेते हैं कि पहले 5 था अब वो 7 हो चुका है, तो मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दिस वेलोसिटी विल आल्सो बी लेस एंड एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स द सेम. याद रखने की बात है कि एरिया अंडर द कर्व चेंज नहीं होता, चाहे टेम्परेचर T1 हो चाहे टेम्परेचर T2 हो, इट रिमेन्स the same. Area under the curve remains same and this area represents, area under the curve क्या show करता है? It represents the total number of molecules. वो तो change नहीं होगा, total number of molecules same रहेंगे, इसलिए area of curve will remain same. This was about the Maxwell-Boltzmann distribution of velocities. velocities का एक बिहेवियर हमने स्टडी किया कि कितने मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं. नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर स्पीड्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज. देखिए 3 तरह की वेलोसिटीज हैं. मोस्ट प्रोबेबल यू नो इट इज द वेलोसिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंबल इज अल्फा एंड इट इज गिवन बाय √2 RT upon m. इट इज ऑल्सो गिवन एज √2 PV upon m. जैसे कि RT को PV इज इक्वल टू nRT से कर दिया, 1 मोल के लिए RT की जगह PV लिख दिया. मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है. एज अ रिजल्ट आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन √P upon D. D इज डेंसिटी. सिमिलरली अनदर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी में देखिए लेट्स से कि N1 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी V1 है. N1 मतलब समझ लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं. फिर N2 मॉलिक्यूल्स लेट्स से कि कोई और 12 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड. और गैस के सैंपल में कुछ और ऐसा दिख रहा है कि 15 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है 4.5 मीटर पर सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे लेंगे? N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ V1 velocity, N2 molecules of V2 velocity, N3 of V3 and so on. इन सबको हम N से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी और N जो है टोटल उसमें सब ऐड होंगे, N1, N2, N3. This is called as the average velocity. Average velocity is given by the relation √8 RT upon pi m and it is also written as 8 PV upon pi m or you can say 8 P upon pi D because mass upon volume को density लिख दिया जाता है. Things are clear? And next is root mean square velocity. तो root mean square velocity क्या है कि सारी velocities का पहले स्क्वायर लिया जाएगा. N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी U1 है, जैसे कि 10 मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. फिर N2 मॉलिक्यूल्स हैं विद वेलोसिटी U2, उसका भी स्क्वायर. N3 मॉलिक्यूल्स, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर. सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर ले लिया जाता है. उसके बाद एवरेज भी लेना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे. उसके बाद रूट भी लेना है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इसका फिर आप पूरी वेलोसिटीज का रूट ले लोगे. दिस इज कॉल्ड एज URMS. तो URMS के लिए सब वेलोसिटीज का हम स्क्वायर लेके एवरेज लेके बाद में रूट लेते हैं, ऊपर हाफ लगा देते हैं. एंड इट इज इक्वल टू √3 RT upon m एंड इट इज ऑल्सो 3 PV upon m. और मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखते हुए आप डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो √3 P upon D फॉर डेंसिटी. थिंग्स आर क्लियर.
तो ये एक्सप्रेशंस याद होने जरूरी हैं, इनके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हम अलग अलग तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। कभी हम मोस्ट प्रोबेबल देखते हैं, मतलब कभी हम वो वेलोसिटी देखते हैं जिसकी वैल्यू को मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर रहे हैं। कभी हम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज का एवरेज ले लेते हैं, कभी हम उसका रूट मीन स्क्वायर डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग डेफिनेशंस हम क्यों देते हैं? सो दैट वी कैन study the velocities of the gas molecules carefully, properly. Let's come to the next slide, relation between molecular speeds. देखो अब 3 तरह की velocities हमने define करी थी। यहां लिखा है at a given temperature the root mean square speed of a gas is maximum while the most probable is minimum. तो देखते हैं क्या क्या expressions थे for यूएमपी का ही सिंबल अल्फा होता है। इसके लिए एक्सप्रेशन था √2RT/m एंड एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था √8RT/m। एवरीथिंग इज अंडर द रूट। एंड यू मोस्ट प्रोबेबल के लिए था √3RT/m। तो ये अलग अलग हमने एक्सप्रेशन देखे। उन सारे एक्सप्रेशंस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल्फा इज टू यू बार इज टू यू आर एम एस, ये है √2, ये है √8/पाई, दिस इज √3, राइट। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1.414, दिस इज 1.56, दिस इज 1.732। तो सबसे बड़ी वैल्यू URMS की है। URMS हैज गॉट द हाईएस्ट वैल्यू। एज अ रिजल्ट अगर इसकी वैल्यू हाईएस्ट है तो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल अचीव दिस हाई वैल्यू। यहां लिखा है ना, मिनिमम मोस्ट प्रोबेबल इज एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी एक्वायरिंग, वी कैन मेंशन minimum number of molecules will acquire this velocity, URMS. Things are clear? तो ये questions देखते हैं आप दो. First one is URMS of a gas is given at 27 degrees Celsius, 30 R raised to power half meter per second. Then what is the molar mass of the gas in kilogram per mole? तो हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर का एक्सप्रेशन लगाएंगे. वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. सॉल्यूशन 1, URMS is given √30 into √r. तो ये एक्सप्रेशन होता है √3RT/m. इट इज इक्वल टू 30 into √r. क्वेश्चन में टेम्परेचर चेक करिए, टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. तो ये हो गया 3 into r into 27 के लिए 300 कर दिया केल्विन में. मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है. दिस इज द एक्सप्रेशन एंड रूट के अंदर 900 दिख रहा है आपको. 3 into 300 is 900. तो रूट लेने के बाद ये बना 30 √r/m एंड m आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना था, बट m भी रूट के अंदर है. दिस इज इक्वल टू 30 into √3 एंड आफ्टर कैंसलेशन आप r का वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो. r इज इन जूल 8.314. अल्टीमेटली आंसर विल बी इक्वल टू 1. This is coming out to be 1 and units will be kilogram per mole. क्वेश्चन ने किलोग्राम पर मोल में ही पूछा है. दिस इज √30 into r. यहां पे r था तो ये सारा कैंसिलेशन के बाद 1 आ रहा है kg पर मोल, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस ऑफ मीथेन इज गिवन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? मतलब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. √28/88. दिस इज द वैल्यू गिवन. सॉल्यूशन नंबर 2 नाउ. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे. √28/88 into 10⁻³ इज गिवन. तो इसकी एक्सप्रेशन होती है √8RT/m एंड दिस इज द सिचुएशन. दीज आर दी वैल्यूज गिवन. तो आप टेम्परेचर कैलकुलेट करिए. कौन सी गैस है, मोलर मास उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा. मीथेन है, मीथेन का मोलर मास 16, बट यू हैव टू टेक 16 into 10⁻³ इट इज टू बी टेकन इन kilograms, right? RT
टी हमें कैलकुलेट करना है, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये ले लेते हैं 7 इंटू 4 और ये 22 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये 4 कैंसल्ड, तो आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, मास हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, आर इज इन जूल पर केल्विन पर मोल. Your answer for temperature will come out to be 240.55 Kelvin. You can convert it into degrees if required. तो हमारे को क्वेश्चन ने कहा था what is the value of temperature. 240.55 एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लगा दिया और फर्स्ट क्वेश्चन था आरएमएस पे, उसमें आरएमएस का एक्सप्रेशन. So let's start our questions now in the next slide. Question number 1. So after the total discussion of velocities, the first question is on the curve showing velocities. At a particular temperature, at a definite temperature T, the distribution of velocities is given by this curve. The curve that indicates that the velocities correspond to A, B and C are. A, B, C velocities कौन कौन सी हैं? क्या हमें A के ऊपर पीक दिख रहा है? पीक का मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है. Most probable velocity is possessed by maximum number of molecules and you can see यहाँ पे fraction of molecules है. fraction of molecules मतलब out of total कितने molecules का ये particular value of velocity है. उसके बाद आता है B. B is the average velocity. average velocity का value ज्यादा है as compared to most probable. C क्या चीज है? URMS. हम इनका expression लिख भी सकते हैं. For most probable symbol alpha and expression is 2RT by M under the root and average के लिए U bar which is equal to under root 8RT upon pi M and for URMS it is under root 3RT upon M. In this manner अगर हम comparison करें तो common factor लेने के बाद ये बचता है, common factor सब cancel कर दिया, root 2 का value add किया, फिर आपने ये 1.56 बनेगा, ये 1.732 बनेगा. अल्टीमेटली कंपैरिजन अगर करें तो 1.124 एंड 1.228 सबसे बड़ा है URMS का वैल्यू. तो ग्राफ के ऊपर URMS एकदम राइट पे रहेगी. आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए. पहले मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज और फिर लास्ट में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. सेकंड क्वेश्चन. The RMS speed of hydrogen is under root 5 times of that of nitrogen. If T is the temperature of the gas, then the relation between temperatures. कौन सा temperature बड़ा है? T1, T of H2 is bigger or T of N2 is bigger or they are same? ये आपको आंसर करना है. तो देखते हैं. Requirement of the question is URMS for H2 is under root 5 times of URMS of N2. This is given to us, right? ये पहली लाइन में लिखा है. टेम्परेचर निकालना है तो ये हो गया अंडर रूट 3RT अपॉन M, बट M किसका? H2 का. यहाँ पे रूट 5 के बाद 3RT अपॉन M और यहाँ M मास लेना है आपको नाइट्रोजन का एंड वी कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ स्क्वायर के बाद टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमारा एक्सप्रेशन रेड्यूस हो जाएगा. ये बन जाएगा 3RT ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इसका मास मैंने डाल दिया 2, ये है 5 और ये है 3R. टेम्परेचर ऑफ N2 ऑन द राइट हैंड साइड, मोलर मास 28. सो कॉमन फैक्टर्स वी कैन कैंसल आउट. आपका एक्सप्रेशन क्या बनता है? टेम्परेचर ऑफ H2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 14 इंटू टेम्परेचर ऑफ N2. ये कैंसल आउट हो रहा है. कैन आई से टेम्परेचर ऑफ H2 इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ N2? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, 14 है, तो वैल्यू विल बी लेसर देन 1. एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है. हाइड्रोजन का लेस मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर. थिंग्स आर क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन. The kinetic energy and pressure of a gas of unit volume are related as. Kinetic energy हमें पता है ये होती है हाफ mnu स्क्वायर. n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, u is the velocity and it is URMS.
एंड प्रेशर ऑफ द गैस के लिए आप अगर ये काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखो, 1/PV इज इक्वल टू 1/3 mnu square. This is the kinetic gas equation. It was given by the postulates of the theory. After giving the postulates, after defining the model of the gas, this equation was given. So divide second equation by the first equation. हमें PV को रखना है न्यूमरेटर में, काइनेटिक एनर्जी को डिनोमिनेटर में. डिवाइड करने से ये कैंसल होते हैं, m और n इवन, u square gets cancelled. You will get PV is equal to 2/3. This thing is getting cancelled. तो अब बना P is equal to 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया है यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम मीन्स P is equal to 2/3 KE for 1 unit of volume. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का सिंबल E दिया है, तो आपका आंसर बनता है A ऑप्शन. P is equal to 2/3 of E. Right? Let's move to the next question number 4 now. Two flasks A and B, they have equal volume. And flask A is maintained at 300 Kelvin, flask B at 600 Kelvin. While A contains H2 and B has an equal mass of carbon dioxide. Find the ratio of total kinetic energy of gases in the flask A to that in the flask B. तो देखिए दो सिचुएशंस हैं, एक में गैस A है, एक में B है. हमें हर बारी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है. H2 is in the flask A and carbon dioxide in the flask B. कंपैरिजन इस तरह से होगा, 3/2 nRT एंड कॉमन फैक्टर्स विल बी कैंसल्ड. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. यहां इक्वल मास दिया है, अंडरलाइन करते हैं हम, इक्वल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 का रेशो चाहिए विद कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बनता है n. हमें लेट्स से कि 1 ग्राम ले लिया H2, तो H2 के मोल्स हो गए 1/2, उसका मोलर मास है 2, R तो कैंसल. एंड टेम्परेचर ऑफ H2 इज गिवन 300. अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स चाहिए डिनोमिनेटर में. कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 ग्राम ले लो, जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया, उसका बना 1/44. एंड टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन 600. You can check in the question, it is written here for B flask जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है 600. So what is the value after cancellation? Kinetic energy of H2 as compared to carbon dioxide will come out to be 11:1. ये देख सकते हैं हम. This is getting cancelled and 2 and 2 is 4, तो न्यूमरेटर में 11 आ रहा है क्योंकि 44 लिखा है. So 11:1 means kinetic energy 11 टाइम्स ज्यादा होगी H2 की. H2 का वैल्यू हमने न्यूमरेटर में रखा, कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोमिनेटर में रखा. टेम्परेचर्स अलग अलग थे बट मोल्स भी तो अलग थे. मोल H2 के थे 1/2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स थे 1/44. राइट? सो बी ऑप्शन आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ. द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 gram of H2 is 200 meter per second. Then the average kinetic energy is. अब आपको अल्फा का वैल्यू दिया है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिया है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी. सो द एक्सप्रेशन फॉर U is मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए UMP लिख सकते हैं और अल्फा लिख सकते हैं. एंड इट इज √2 RT/m. एंड m हम लेंगे मास ऑफ H2 एंड आपके पास दिया है 8 ग्राम H2, उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू है 200. दिस इज इक्वल टू 2 RT/2. H2 का मास kg में लेना है. मोलर मास ऑफ H2 is 2 × 10⁻³ kg. तभी आपका यहां पे SI यूनिट में आंसर आएगा अगर मास को किलोग्राम में रखेंगे. एंड टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम R × T का वैल्यू निकाल देंगे. दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ये बन जाएगा 40,000 ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 RT/2 × 10⁻³ राइट?
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद RT का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 40। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप यूज करेंगे 3/2 nRT एंड 8 ग्राम हाइड्रोजन आपको दिया, उसके मोल्स बनाए हमने 2 से डिवाइड करके। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इन द क्वेश्चन वाज गिवन। टेम्परेचर आपने लेना नहीं, टेम्परेचर तो है ही नहीं ना, कहीं भी क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हमारे पास R इंटू टी का वैल्यू इकट्ठा है। हम 8.314 नहीं डालेंगे, R इंटू टी की जगह 40 ऐड कर देंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 240 जूल्स। 240 जूल्स मीन्स बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर, बी इज द आंसर, राइट। तो URMS से पहले RT कैलकुलेट किया, फिर वो RT को हमने यहां पुट कर दिया। टेम्परेचर अगर दिया हो फिर तो सीधा R का वैल्यू हमें पता है, T का वैल्यू पता है, बट यहां इंपॉर्टेंस ये थी कि टेम्परेचर वाज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6 into 10 raised to power 22 gas molecules, each of mass 10 raised to power minus 24 kg, was taken in a vessel of 10 liter capacity। तो उसके बाद क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड आपको कैलकुलेट करना है। URMS इज गिवन टू यू 100 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू 1/3 mn², ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर यहां से निकल आएगा और प्रेशर का आंसर पास्कल में चाहिए, सब ऑप्शन पास्कल में है, मतलब SI यूनिट। SI यूनिट वॉल्यूम का लीटर नहीं होता है, वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। हमारे पास 10 लीटर का वेसल है, इसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। 1 लीटर इज 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 1/3 m। मास कितना है, 10 रेज टू पावर -24 एंड n इज 6 into 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स आपको दिए थे। वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी इज 100। ये थोड़ा राइट पे शिफ्ट करके आप चेक कर सकते हो, ये 100 का स्क्वायर हमने ये कर दिया है। PV इज इक्वल टू 1/3 mn²। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। बस अब सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर बनेगा 2 into 10 raised to power 4 पास्कल्स। यू कैन चेक दैट, यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है। ये कटेगा, ये आएगा 2 और अकॉर्डिंगली आप 10 रेज टू पावर को सॉल्व करो, आपका आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन बी। सो सिंपल क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन काइनेटिक गैस इक्वेशन। एक एक पार्टिकल का मास आपको दिया गया था और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिए थे, URMS भी गिवन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। The root mean square velocity of 8 gram of helium is given, then what is the total kinetic energy of helium gas? फिर से वही एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी तो इसी तरह से निकलेगी ना, 3/2 nRT। From the kinetic molecular theory we have learned that kinetic energy is dependent upon temperature, but आपको क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है URMS। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है √3RT/m, इसका वैल्यू दिया है 300। यहां से हम R इंटू टी कैलकुलेट कर लेंगे। हीलियम दिया, हीलियम का मास होता है 4 यूनिट, बट ग्राम्स में नहीं लेना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें जूल्स में दी है, तो ये किलोग्राम में लेना है, SI यूनिट में काम करना है। तो फिर से दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा 300 into 300 इज इक्वल टू 3RT/4 into 10 raised to power -3। सिंपली हम यहां से RT का वैल्यू निकाल देंगे, वो आ जाएगा 120। एक 3 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 4 3s 12 करके ये अल्टीमेटली 120 बनेगा। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। 3/2 nRT के लिए आपने यहां पे n को लेना है 8 डिवाइडेड बाय कौन सी गैस है, ये हीलियम गैस है। हीलियम के लिए मोलर मास 4 यूनिट, गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड 120 इज द वैल्यू। यू आर गेटिंग आंसर एज 360 जूल्स।
360 ये चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 2 इज 8, 8 न्यूमरेटर में 8 डिनोमिनेटर में कैंसल, 360 जूल हमारा आंसर, सी इज द आंसर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होगी अगर आपके पास अल्फा है या अगर आपके पास यूआरएमएस है या मोस्ट प्रोबेबल है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अनदर वन फॉर कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटीज, द क्वेश्चन इज if T1, T2, T3, these are the temperatures at which URMS, average and most probable of oxygen gas are all equal to 1500। देखिए अब हमारा ये सिचुएशन है क्वेश्चन में कि URMS और एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबकी सब 1500 मीटर पर सेकेंड है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। देन टेम्परेचर T1 बड़ा होगा, इसका टेम्परेचर का नाम T1 है और एवरेज का T2 है, इसका नाम है T3। T1 will be bigger और T2 will be bigger और accordingly you have to answer according to the options। और ये भी हो सकता है कि तीनों इक्वल हो, जैसे कि सी ऑप्शन में आप देख रहे हो। तो URMS के लिए लिया 1500, कैन इट बी रिटन एज √3 RT by m। फिर है एवरेज वेलोसिटी, वो हम लिख सकते हैं 1500 है वो भी, एंड इट इज इक्वल टू √8 RT अपॉन पाई m। तीसरे को लिखते हैं, तीसरे का नाम है अल्फा एंड दैट इज ऑल्सो 1500, इट इज इक्वल टू √2 RT by m। इन दिस मैनर सबका वैल्यू इक्वल है। तो अब पुट करिए वैल्यू, 1500 इज इक्वल टू, मैंने √3 का वैल्यू निकाल दिया, RT अपॉन m, ये एक कॉमन फैक्टर है। दिस इज 1500, इसको हम पेन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि हम U बार को ब्लू पेन से लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू √8 अपॉन पाई का वैल्यू बनता है 1.60, ऑलमोस्ट 1.57, 1.6 कर दिया मैंने राउंड ऑफ करके, RT अपॉन m। एंड देन दिस इज 1500 एंड √2 1.414, रेस्ट इज इन साइड द रूट, राइट। अब देखो, अब इस नंबर से हमें डिवाइड करना है, ये बन रहा है 1500 अपॉन 1.73 इज इक्वल टू √RT अपॉन m। इसका सिंबल हम T1 कर सकते हैं फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला है 1500 इज अपॉन 1.60, रूट के अंदर R, फिर टेम्परेचर इसका T2 है, अल्फा का टेम्परेचर है T3, इट इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1.414 इज इक्वल टू √RT3 अपॉन m, राइट। अब आप रूट को सॉल्व करने से पहले लेफ्ट साइड देखो, कैन आई से द वैल्यू विल बी बिगेस्ट फॉर विच, 1500 को आप एक बारी डिवाइड कर रहे हो 1.73, ये छोटा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर इज बिगर मींस दिस नंबर विल बी स्मॉलर, रिजल्ट विल बी स्मॉलेस्ट इन द फर्स्ट केस, मतलब T1 विल बी स्मॉलेस्ट, फिर T2, फिर T3, ये आप 1500 को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो 1.414, व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर द ओवरऑल नंबर विल बी बिगर, मींस हाईएस्ट इज T3, इट मींस T3 सबसे बड़ा है, फिर T2, फिर T1। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी, T3 इज हाईएस्ट, T1 इज स्मॉलेस्ट। तीनों के कंपैरिजन में आपको क्वेश्चन दिया गया जिसमें टेम्परेचर अलग अलग है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। The gas molecules, each of mass 10 raised to power minus 26 kg, are taken in a volume of 1 decimeter cube. Root mean square velocity given है, find out the temperature. For this question you are given temperature, you are given mass √3 RT upon m। मोलर मास नहीं दिया है, एक एक पार्टिकल का मास दिया है, एक एक मॉलिक्यूल का मास दिया है। तो हम ऐसा करेंगे 10 raised to power minus 26 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें लेना है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये हो गया मोलर मास। केजी के अंदर आया क्योंकि एक पार्टिकल का मास केजी में ही दिया था। अब आप यूआरएमएस कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको गिवन है क्वेश्चन में, नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड के मीटर बनाइए, एसआई यूनिट में मीटर्स में लेके आइए। 1000 इज इक्वल टू √3 RT अपॉन m। m क्या है, अभी अभी कैलकुलेट किया, मोलर मास 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3।
सो आर का वैल्यू हम 8 लेंगे, क्वेश्चन ने दिया रखा है 8 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टेकिंग द रूट ये बन जाएगा 250 केल्विन. दिस इज द टेम्परेचर, राइट. 250 का क्या मीनिंग है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो अलग अलग सिचुएशन में आप वेलोसिटीज के क्वेश्चंस देख रहे हो. अनदर वन, डेंसिटी ऑफ अ गैस फिल्ड विद इलेक्ट्रिक लैम्प इज गिवन 0.75 kilogram per meter cube, and after the lamp has been switched on, the pressure increases from 4 into 10 raised to power 4 Pascal to this 9 into 10 to power 4. What is the increase in URMS? तो देखिए यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है. URMS तो ये होता है √3 RT by M, बट क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी की टर्म्स में पहले हम प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3P अपॉन D, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम D होता है. अब क्या क्या इंक्रीज किया जा रहा है? प्रेशर और डेंसिटी का वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है, प्रेशर में बस चेंज है. तो हमें चाहिए चेंज इन RMS वेलोसिटी. हमें URMS नहीं निकालना, चेंज इन URMS निकालना है. इट विल बी इक्वल टू √3 अपॉन D एंड अंडर रूट ऑफ प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल. प्रेशर भी रूट के अंदर है. तो डेंसिटी था 0.75, एक प्रेशर है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 और ओरिजिनल था 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4. आप चेक करिए क्वेश्चंस में, एक है 4 इंटू 10 पावर 4, अनदर वन इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4. तो दिस इज 3 अपॉन 0.75. ये है रूट लेने के बाद 300, ये है 200. दिस इज 3 इंटू 10 अपॉन 10 नहीं 100 अपॉन 75 इंटू 100, राइट. आपका आंसर बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 200. थिंग्स आर क्लियर. एवरीथिंग इज अंडर द रूट. ये रूट में था, ये 3 वैल्यू, ये 0.5 वैल्यू, एंड दिस इज रूट एंड दिस 100 इज आउटसाइड, राइट. तो ये आंसर बनता है 200. 200 का मीनिंग हुआ ऑप्शन बी. फॉर योर 9th क्वेश्चन आंसर इज 9th नहीं 10th क्वेश्चन नंबर 10 आंसर है ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 11. The ratio among most probable velocity and mean velocity, mean मतलब average, and root mean square velocity is given by this thing we are doing again and again. Alpha and mean velocity is u bar, and then you have URMS. इनका relation क्या है? √2 RT upon M. This is √8 RT upon M pi M, and this is √3 RT by M. मतलब कि ये आंसर बन जाएगा. RT अपॉन M कॉमन है, तो √2 √8 अपॉन पाई और फिर √3. D ऑप्शन इज द आंसर. गॉट इट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. एट व्हाट टेम्परेचर most probable speed of sulfur dioxide have the same value of root mean square velocity of O2 at same temperature. हमें टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड का पता करना है और ऑक्सीजन का है 300. URMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को इक्वल करना है फॉर O2. दिस इज अंडर रूट 3 RT by M. दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 3 RT by M. मोलर मास, यहां ऑक्सीजन है, यहां सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो अब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं. क्वेश्चन ने मोस्ट प्रोबेबल बोला है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब 2 RT करेंगे, 3 नहीं. URMS होता तो 3 होता. नाउ वी कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ये बना दो 2R कैंसल, स्क्वायर भी ले लिया. टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन 64 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ O2. 300 दिया है, 300 अपॉन 32. सो व्हाट इज आवर आंसर? इट विल बी 2 here, and you will get your answer as 300 multiplied by 2. So check in the question. एक तरफ है मोस्ट प्रोबेबल और एक तरफ है रूट मीन स्क्वायर. तो हमें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा. राइट पे रूट मीन स्क्वायर है ऑक्सीजन के लिए, तो जब आप स्क्वायर लोगे, यहां मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. एक तरफ तो 2 रहेगा, दूसरी तरफ 3 रहेगा. ठीक है,
तो अब आप चेक करिए टेम्परेचर हमारे पास ये 2 और 2 कैंसल 900 आ रहा है. टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 900 केल्विन. 900 केल्विन पे जो टेम्परेचर है सल्फर डाइऑक्साइड का वो सेम रहेगा एज दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 एट 300. 900 का मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. नाउ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉज. काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं, बट द आइडियल गैस इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ और मे बी ग्राम्स लॉ, उसके ऊपर डिस्कशन अब स्टार्ट होती है. 13th क्वेश्चन. The question is 11 moles of N2 and 12 moles of H2 mixture is reacted in a 20 liter vessel at 800 Kelvin. 800 पे ये कंडीशन हमें दिया है कि N2 और H2 को कंबाइन करते हैं, ऑब्वियसली अमोनिया बनेगा. ये रिएक्शन दिया है N2 के 11 मोल और उसके 12 मोल्स. आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड 6 मोल ऑफ H2 was present. ये फिर 6 मोल रह गया. एंड 3.58 लीटर ऑफ लिक्विड वाटर इज इंजेक्टेड इनटू इट. इसमें फिर वाटर ऐड कर रहे हैं in the equilibrium mixture and the resultant gaseous mixture is suddenly cooled to 300 Kelvin. What is the final pressure of the gas mixture? Assume that all ammonia is dissolved in water, no change in volume of liquid and no reaction between N2 and H2 at 300 Kelvin. तो देखिए हमारे पास ओरिजिनली जो टेम्परेचर था वो 800 था, ये क्वेश्चन में गिवन है. वेसल 20 लीटर का था, उसके बाद कुछ वाटर ऐड किया गया इसमें. तो बैलेंस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल N2 plus 3H2 is giving 2 mole of ammonia. Things are clear. Initial moles हैं 11 and 12. At equilibrium ये बनता है 6 मोल. H2 मतलब देखो 6 है ना, तो इसको बेटर है कि हम ऐसा ले लें. दिस विल बी 12 माइनस 3x. ये रह जाएगा 11 माइनस x. अब 12 माइनस 3x का वैल्यू आपको 6 दिया है, तो क्या x का वैल्यू आ रहा है 2. x इज इक्वल टू 2. इट मीन्स कि ये 11 में से 2 मोल रिएक्ट कर गई. 9 मोल हमारे पास नाइट्रोजन बची. और अमोनिया कितनी बनेगी? बिगनिंग में तो अमोनिया नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं था, बट 800 केल्विन पे अमोनिया बनेगी. बिगनिंग में 800 केल्विन टेम्परेचर है, वहां पे प्रोडक्ट आएगा, तो वो बनेगा 2x. 2x मतलब 2 इंटू 2 4 मोल. आफ्टर दैट इट वॉज सेड दैट इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव होता है सारा का सारा अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि 3.58 लीटर वाटर हमने डाल दिया. तो ये रिएक्शन बनेगा, अमोनिया फिर बचेगा नहीं. अमोनिया विल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रेशर. रिजल्टेंट व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर. हम क्या करेंगे? PV इज इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स 6 प्लस 9. एक तरफ 9 मोल है, एक तरफ 6 मोल है, ये तो रिएक्ट कर जाएगी. इट विल रिएक्ट विद वाटर. आपको रिएक्शन लिख के दिखा दिया है. टोटल आपके पास 15 मोल्स हैं और हमें आंसर किस में चाहिए? एटमॉस्फेयर में आंसर चाहिए. तो R का वैल्यू 0.0821 R होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर है 300. दिस इज P. एंड वॉल्यूम क्या लेंगे? वॉल्यूम बिगनिंग में चेक करते हैं. हमारे पास सिचुएशन ये थी कि 20 लीटर का वेसल था, तो वॉल्यूम 20 लीटर था, बट वाटर डालने के बाद वाटर तो सारा बॉटम पे बैठ जाएगा. बॉटम पे 3.58 लीटर वॉल्यूम वाटर ने ले लिया. गैसेस के लिए जो वॉल्यूम बच रहा है वो है 16.42 लीटर. सो यहां पे जहां 15 मोल्स आते हैं N2 और H2 के, वहां पे वॉल्यूम है 16.42. नाउ यू कैन गेट योर आंसर. प्रेशर आ जाएगा 22.5 एटमॉस्फेयर. 22.5 का क्या मतलब है? सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर. सो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वाटर डालने से
ये अमोनिया और वाटर कंबाइन करते हैं, वाटर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो वेसल के नेट वॉल्यूम को कम करेगा क्योंकि गैसेस ने वहां पे मूव करना है जहां पे वाटर नहीं है। अमोनिया तो सारी की सारी वाटर में चलेगी, N2 और H2 मूव कर रही हैं इन स्पेस ऑफ 16.42 लीटर, नॉट 20 लीटर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14th, a mixture of ammonia and hydrazine is placed in a sealed container at 300 Kelvin, ammonia or hydrazine, and total pressure of the mixture is 0.5 atmosphere. The container is heated to 1200 Kelvin, at which time both the substances decompose completely. ये अमोनिया भी डिकम्पोज हो रही है N2 and H2 में, और हाइड्राजिन भी डिकम्पोज हो रही है N2 and H2 में. After decomposition is complete, the total pressure at 1200 Kelvin is found to be 4.5 atmosphere. Find the mole percent of hydrazine in the original mixture. तो देखिए आइडियल गैस के बेसिस पे ही क्वेश्चन करना है. वी हैव अमोनिया डिकम्पोजिशन. ये डिकम्पोजिशन कब होती है? जब हम अपने एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर 1200 कर देंगे. पहले तो 300 टेम्परेचर है, ओरिजिनल प्रेशर भी है 0.5, और फाइनल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर बन जाएगा 1200. और हाइड्राजीन का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है. हाइड्राजीन बनता है N2 एंड H2 में, डिकम्पोज हो रहा है. दोनों रिएक्शंस भी बैलेंस्ड है, राइट? दीज आर दी बैलेंस्ड रिएक्शन. अब मिक्सचर के अंदर कितने मोल N1 है, कितने N2, कितना हाइड्राजीन है? लेट N1 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड N2 मोल्स ऑफ हाइड्राजीन आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर. अब हम रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन ये था, ये आपके पास सिचुएशन है, इसके मोल्स हैं बिगनिंग में N1, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो N1 में से ये कुछ ब्रेक हो जाएगा, सारा का सारा खत्म, और ये बनेगा N1/2, ये बनेगा 3/2 N1, राइट? पूरा अमोनिया खुद तो डिकम्पोज हो गया. हाइड्राजीन भी पूरा डिकम्पोज हो जाएगा. हाइड्राजीन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है, ये आपके पास है N2 मोल्स इन द बिगनिंग. दीज वर द इनिशियल मोल्स. आफ्टर दैट दिस इज डिकम्पोज्ड एंड ये बन जाएगा N2 और ये बन जाएगा 2N2. दीज आर द इक्विलिब्रियम वैल्यूज एंड दीज आर द इनिशियल वैल्यूज. तो अब हमारे क्वेश्चन में ये सिचुएशन बन रहा है कि इनिशियली टेम्परेचर है 300, इनिशियल मोल्स हैं N1 प्लस N2. N1 उसमें अमोनिया है और N2 उसमें हाइड्राजीन है, और इनिशियल प्रेशर है 0.5. फाइनल प्रेशर आपको पता करना है. फाइनल मोल्स तो अब बदल गए हैं. फाइनल मोल्स यहां पे आ रहा है 2N1 और यहां आ रहा है 3N2. कैन आई से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे ना तो अमोनिया बच रही है ना हाइड्राजीन बच रही है, बट N2 एंड H2 बन रही है. इट इज 2N1 प्लस 3N2. लेट्स टेक द रेशो. इनिशियली प्रेशर है PV इज इक्वल टू nRT. तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की दो इक्वेशंस बनेगी. पहला था 0.5 इंटू V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू R इंटू 300. दूसरा है 4.5. अब मोल्स हैं 2, ये वाले 2N1 प्लस 3N2. अब टेम्परेचर है 1200. फर्स्ट एंड सेकंड हमने दो एक्सप्रेशंस बना लिए और यही इनकी रेशो लेके इनको डिवाइड करके हम प्रेशर कैलकुलेट कर देंगे. 2/1 कर देते हैं. 2/1 मतलब इट इज 4.5 अपॉन 0.5. V कैंसिल हो गया. 2N1 प्लस 3N2. R is also cancelled. N1 plus N2 and 1200 upon 300. इसको आप सॉल्व करिए. लेफ्ट साइड पे आ रहा है 9. 2N1 plus 3N2 is equal to N1 plus N2 into 4. ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इट इज बिकमिंग 9N1 plus 9N2 is equal to, दिस इज 4 ना, तो 8N1 plus 12N2. तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा N1 is equal to 3N2. मतलब N1 अपॉन N2 का रेशो है 3/1. 3 पार्ट्स N1 है और 1 पार्ट हाइड्राजीन है. तो मोल परसेंट ऑफ हाइड्राजीन निकालना था. मोल परसेंट ऑफ हाइड्राजीन इज मोल्स ऑफ हाइड्राजीन अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स तो 4 हैं
N1 प्लस N2 का वैल्यू 4 है इंटू 100, सो 1/4 इंटू 100 मतलब 75% मिक्सचर के अंदर, दिस इज 25% इन द मिक्सचर इट वाज हाइड्राजीन। एंड अगर आपको कोई मोल्स ऑफ अमोनिया पूछेगा, मोल परसेंट ऑफ अमोनिया, तो वो आएगा 75 बिकॉज दैट इज 3/4 ऑफ 100, राइट। इन दिस वे हमारा आंसर है नंबर ऑफ मोल परसेंट ऑफ हाइड्राजीन इज 25 का मतलब बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने एक्सप्रेशन लगा के मोल्स की रेशो लेके प्रेशर कैलकुलेट किया। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द गैस लॉज, वी आर गिवन पीडी वर्सेस पी, डी डेंसिटी है ग्राम पर मिलीलीटर में। ये ग्राफ इज प्लॉटेड, पीडी वर्सेस पी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर हीलियम गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर and D upon dP of PD is given to be 5 at a pressure of 8.21 atmosphere। आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। Are we aware of the relation PM is equal to DRT? हमें P और D को मल्टीप्लाई करके रखना है, तो सिंपली आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय P ऑन बोथ साइड्स। P से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है P स्क्वायर M इज इक्वल टू डी पी इंटू आर टी। तो dP या कह लो PD एक ही बात है। इट इज बेटर टू राइट PD क्योंकि क्वेश्चन हमें PD की टर्म्स में बोल रहा है, तो P इंटू डी कर देते हैं। तो PD को रखते हैं लेफ्ट पे, रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, D अपॉन dP ऑफ PD। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। m अपॉन आर टी इज कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, p स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दिया हमने 2p। लेफ्ट साइड पे इसका वैल्यू क्वेश्चन में 5 गिवन है, दिस इज गिवन टू बी, चेक करो 5। प्रेशर लेंगे 8.214। क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्वेश्चन है हीलियम के ऊपर। हीलियम का मास 4 यूनिट्स एंड दिस इज 2, प्रेशर इज 8.21। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, R 0.0821 लेने से प्रेशर एटमॉस्फेयर में आएगा, इट विल कम आउट टू बी 160 केल्विन, राइट। तो ये वैल्यू हमें दी गई थी क्वेश्चन में। D अपॉन dP ऑफ PD वॉज गिवन टू बी 5। ये 5 वैल्यू थी, हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, you will get this situation। final temperature is 160, T is 160, 160 का मतलब है A ऑप्शन आंसर। Now we have another one, question 16। A balloon containing 1 mole of air at 1 atmosphere pressure initially is further filled with air till the pressure is increased to 4 atmosphere. Initial diameter of the balloon is 1 meter and pressure at each stage is proportional to diameter। क्वेश्चन ने कहा pressure is proportional to diameter of the balloon। अगर प्रेशर पहले था 1 एटमॉस्फेयर तो डायामीटर था 1, उसके बाद इसने प्रेशर को बढ़ा दिया, ये देखो इनिशियल डायमीटर इज 1, फिर प्रेशर कर दिया 4 एटमॉस्फेयर, तो डायमीटर भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, ये भी 4 मीटर बढ़ गया। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ एयर हैज बीन एडेड। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो 1 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर आपने एयर डाली, कितनी एयर ऐड करी गई वो बताना है। तो PV इज इक्वल टू NRT की हेल्प से हम कर देंगे PV अपॉन N इज इक्वल टू PV अपॉन N। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट एयर अंदर डालते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। कितने मोल्स आपने एयर ऐड करी ये बताना है। पहला प्रेशर लिया 1, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 1 मीटर डायामीटर है तो 0.5 इज द रेडियस। नंबर ऑफ मोल्स इन द बिगनिंग इज 1। दूसरी तरफ के मोल्स आपको पता करने हैं, प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर और डायामीटर है 4 तो रेडियस हो गया 2 मीटर। एंड
नंबर ऑफ मोल्स N2 हमें कैलकुलेट करना है। सो कॉमन फैक्टर्स हम कैंसल आउट करेंगे और N2 का वैल्यू निकालेंगे। क्यूब लेने के बाद आप वैल्यू लेते हो, इट विल कम आउट टू बी 256। आफ्टर कैलकुलेशन ये मोल्स जो आ रहे हैं 256 ऑन राइट हैंड साइड, इट मीन्स दैट एक मोल पहले था, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एडेड, number of moles of air added is 256 minus 1, which is 255 moles. 255 मोल ऐड करी गई एयर, इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा आंसर। अनदर वन, क्वेश्चन 17, what is the density of wet air with 75% relative humidity at 1 atmosphere and 300 Kelvin? Given vapor pressure of water is 30 torr and the molar mass of air is also given. हमें क्या निकालना है? Density of wet air. तो density obviously हमें निकलेगी mass upon volume से, right? Relative humidity दिया है, relative humidity है 75%. This is given. So we can find out relative humidity का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, कितना वाटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100, ये relative humidity का एक्सप्रेशन। दिस इज गिवन 75, प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर हम पता कर लेंगे और ये 30 टॉर दिया है, vapor pressure of water is given to be 30. Can I find out the pressure due to water? ये 22.5 टॉर बन रहा है। Got it? अब परसेंटेज में चाहिए, अगर एयर के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब 760 टॉर, if 760 torr is pressure due to air, then water उसके अंदर 22.5 टॉर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्या हम 100 के पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि परसेंटेज में वैल्यू मिल जाए? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 100 के पीछे, ये 2.96% वाटर है। एयर में 2.96% वाटर मतलब ड्राई एयर फिर कितनी हुई? ड्राई एयर इज 97.04% एंड मॉइस्चर और द वाटर वेपर्स दे आर 2.96%। अब अल्टीमेटली डेंसिटी के लिए हमें मोलर मास चाहिए वेट एयर का, मास ऑफ वेट एयर, इट विल बी इक्वल टू, मास चाहिए मास, राइट? द वेट एयर इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, एक है ड्राई एयर और एक उसमें है वाटर वेपर्स, और ये उनकी परसेंटेज। तो ड्राई एयर का जो मास होता है वो लिया जाता है 29, तो मोलर मास ऑफ वेट एयर विल बी इक्वल टू 29 और फिर इसकी परसेंटेज वाटर 2.96 और फिर वाटर का मोलर मास 18 यूनिट डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास क्या चीज आ गई? मोलर मास ऑफ वेट एयर, एंड इट कम्स आउट टू बी 28.67। वेट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर, आप देख सकते हो, ठीक है? ड्राई एयर का तो 29 लिया जाता है। अब देखिए बात यह है कि वॉल्यूम हमें कहीं भी नहीं दिया क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ वेट एयर इज नॉट गिवन टू यू, बट हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट डेंसिटी, पीएम अपॉन आरटी। मोलर मास हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द मोलर मास। आंसर आपके पास आ जाएगा ग्राम पर लीटर में, एंड ये 0.0821 लीजिए, टेम्परेचर 300, योर आंसर विल बिकम 1.164 ग्राम्स पर लीटर। दिस इज इन एटमॉस्फेयर। 0.0821 के यूनिट्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर, लीटर पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, मोलर मास ग्राम्स में लिया है, तो ऑटोमेटिकली ये ग्राम पर लीटर में डेंसिटी आएगी। 1.164 का मीनिंग है डी ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 18th। अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन containing 60% oxygen by volume required 220 seconds to effuse while an equal volume of oxygen took 200 seconds.
under the same conditions. If the density of oxygen is given, what is the density of ozone? देखो मिक्सचर है हमारे पास ओजोन प्लस O2 का, और इसमें 60% O2 है, 40% हो गया इसमें ओजोन, दे आर बाय वॉल्यूम। तो हमें पहले तो इस मिक्सचर का मोलर मास पता करना है ग्राम्स लॉ की हेल्प से। ग्राम्स लॉ इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 1/2 इज अंडर रूट मोलर मास इनवर्स के साथ। ठीक है, तो एक बात यह है कि टाइम दिया है 220 सेकंड और 200 सेकंड, क्या इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम? ये भी हो गया वॉल्यूम ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1। वॉल्यूम सेम है तो ये बन जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू m2/m1। हम मिक्सचर को 2 ले लेते हैं और हम ऑक्सीजन को 1 ले लेते हैं, ये हमने सिंबल्स डिसाइड कर दिए। तो 220 सेकंड लग रहे हैं और दूसरे को 200 सेकंड लग रहे हैं। और मोलर मास ऑक्सीजन का हमें पता है, नहीं डेंसिटी दिया है ना क्वेश्चन में, डेंसिटी दिया है 1.6, तो डेंसिटी से इक्वेट करो, दैट विल बी बेटर, दैट विल बिकम इक्वल टू डेंसिटी एंड डेंसिटी रेशो। तो 220 सेकंड किसको लग रहे हैं? 220 सेकंड लग रहे हैं मिक्सचर को और 200 सेकंड लग रहे हैं ऑक्सीजन को। तो हम यहां वैल्यू पुट कर चुके हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर एंड डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये डिवाइड करके आता है 1.1 डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। 1.6 है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, 1.6 ग्राम पर लीटर एंड रूट इज ऑल्सो देयर। तो ये रूट को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे और मिक्सचर का डेंसिटी हमें मिलता है 1.936 ग्राम पर लीटर। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट क्या करना था? डेंसिटी ऑफ ओजोन। तो हम ये जानते हैं कि मास जो होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन। तो ये आपके पास है डेटा कि ऑक्सीजन हमारे मिक्सचर में कितनी प्रेजेंट है। चेक करते हैं क्वेश्चन में, ऑक्सीजन 60% है बाय वॉल्यूम, दिस इज 60% बाय वॉल्यूम और ऑक्सीजन का डेंसिटी है 1.6। मिक्सचर का डेंसिटी हमने अभी अभी निकाला, ओजोन का डेंसिटी हमें पता चल जाएगा। वॉल्यूम हमारे टोटल मिक्सचर का 100 यूनिट है और इसका डेंसिटी हमने 1.9 कैलकुलेट कितना किया था, 1.936 इज इक्वल टू 60 इंटू 1.6 प्लस 40 इंटू डेंसिटी ऑफ ओजोन। डेंसिटी ऑफ ओजोन का आंसर आ जाएगा 2.44 ग्राम पर लीटर। 2.44 कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई लेटर ऑन, इट विल बी डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19th। A mixture of nitrogen and water vapors is admitted to a flask at 760 torr, which contains a sufficient solid drying agent. After a long time, the pressure reached a steady value of 722 torr. If the experiment is done at 27 degrees and drying agent increases in weight by 0.9 grams, what is the volume of the flask? Neglect any possible vapor pressure of the drying agent and the volume occupied by the drying agent. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा वाटर वेपर्स है, ठीक है। 760 टॉर इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर है और इसके अंदर अगर ड्राइंग एजेंट डाल दिया जाए तो फिर वेपर प्रेशर रह जाता है 722, मतलब वाटर है ना रिमेनिंग, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। प्रेशर ड्यू टू वाटर हम पता कर लेंगे, ये मिक्सचर का है, ये ड्राई होने के बाद है। तो क्या वैल्यू आ गई? प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स आ गया 38 यूनिट, मतलब कि 38 टॉर। इसको हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 760, आपने प्रेशर बना लिया। वाटर का प्रेशर आपको मिल चुका है, आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क एंड वाटर। देखो ड्राइंग एजेंट ऐड करने से इट इंक्रीजेस इन वेट बाय 0.9 ग्राम। इसका क्या मीनिंग है? वेट ऑफ वाटर, ड्राइंग एजेंट का वेट क्यों बढ़ रहा है? वाटर की वजह से 0.9 ग्राम वेट बढ़ रहा है। तो हम इसके मोल्स बना लेंगे। मोल्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब आपके पास
टेम्परेचर है 27 डिग्री। अब आपके पास वाटर का प्रेशर है, आप कैलकुलेट कर दीजिए। PV इज इक्वल टू nRT से वाटर वेपर्स थे ना, उनका प्रेशर था 38/760। क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? ये मोल्स हो गए। आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। R को 0.0821 लेते हैं, टेम्परेचर 27 था मतलब 300। डायरेक्टली आंसर लीटर्स में आएगा 24.63। एवरी टाइम हम आइडियल गैस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और आप कैलकुलेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, जिसमें कि वाटर कितना है और गैस कितनी है वो कैलकुलेशन के। क्वेश्चन 20 इज द डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस एक्स एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 500 केल्विन इज। आपको डेंसिटी गिवन है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and the vapor effuses through a small hole at a rate of 4/5 times slower than oxygen under the same conditions. What is the compressibility factor Z of the vapor? तो देखिए क्वेश्चन में हमें Z कैलकुलेट करना है। Z PV अपॉन RT का रेशो होता है। ये Z आइडियल गैस के लिए 1 होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से हम Z कैलकुलेट करेंगे। बट मोलर मास हमें दिया नहीं है, वॉल्यूम भी हमें नहीं दिया, हमें डेंसिटी दी है वेपर का 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, right? By using the Gram's law of diffusion, we can find out the molar mass of vapor. Rate of diffusion of the vapor X as compared to diffusion of oxygen can be written as inversely proportional to their molar masses. And question में दिया है कि ये जो वेपर है ये 4/5 टाइम्स स्लोअर रेट पे डिफ्यूज करता है देन ऑक्सीजन। आई मीन टू से कि अगर ऑक्सीजन का वैल्यू फ्लो का 1 है तो ये 4/5 है। तो 4/5 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 32 अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स। ये हमारे पास सिचुएशन है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ मोलर मास। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहां पे मोलर मास का आंसर आ जाएगा 50। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी आपको पता है। कैन इट बी रिटन एज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। 50 ग्राम मास आ चुका है, डेंसिटी का वैल्यू है क्वेश्चन में 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये है ग्राम्स पर लीटर के अंदर। सीधा सीधा वॉल्यूम आपको लीटर्स में मिल जाएगा 62.5 लीटर्स। आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट Z। Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT। प्रेशर का वैल्यू था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया, R है 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 500। 1.52 बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन। 1.52 का मतलब क्या है? सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो इस तरीके से Z कैलकुलेशन का क्वेश्चन था जिसमें कि ग्राम्स लॉ की हेल्प से पहले मोलर मास निकाला गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर। आपने गैसेस के अंदर काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी के रिलेटेड वेलोसिटीज और उन वेलोसिटीज का कंपैरिजन एंड काइनेटिक एनर्जी, हाउ they are related with temperature, and after that the fraction of molecules which are possessing a particular velocity, जिसको कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला गया। उस कर्व का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटीज पे, किस तरह से वेलोसिटीज चेंज होती है, अकॉर्डिंगली कर्व चेंज होगा। सो ये सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मेन था। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप द कंपैरिजन ऑफ अ रियल गैस एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस है कि नहीं है वो हम Z की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। Z विच इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन RT। उस रेशियो से पता करते हैं कि क्या सारे गैस लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वंडरवॉल इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि रियल गैस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।